Yes, good morning, everyone. Yes, I request everyone to please switch on your cameras. Yes, Yuvraj, 11D, Harnaz, and Avishi. Yes, Mr. Yuvraj, 11D, and Harnaz ko. Or other, I am going to remove you. Yes, Harnaz ko or so not interested. Yes, Mr. Yuvraj, are you there? युवराज बेटा कैमरा ऑन कर लो. Switch on your cameras. So that we can start the class on time. So save your time also as well as the time of others. Yes, Vishi, last time हमने कहाँ तक किया था इसको cover? We have discussed a number of questions. 20. Up to 20. Okay. So whenever there is a online class, you come in the online class, and all the offline students, so no one joins the class. So the 11F has deputed you as a ठीक है, उनका correspondence बनाया हुआ है, that is whenever there is a online class, so you have to take the responsibility. So this is my last call to Mr. Yuvraj Singh, 11D. Please switch on your camera once, then later on you can switch off your camera. But once you have to switch on your camera. So let us start with the question number. Next is ये मेरे को था 21st भी हमने कर लिया था, ये S वाला भी हमने कर We लिया have था. done this also. So 22nd भी कर लिया. 22nd था हाईएस्ट, ये भी हो गया. नेक्स्ट भी हो गया था मेरे हिसाब से. The data type of the object is tuple type. This is We have to continue from 25. yes. चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 26. So which of these is not the core data type? So this is basically theoretical question. Can you once tell what is core data type? List and this dictionary, they are not the core ones. Tuples also is the core one. So this class is not the core one. ठीक है. What does a core data type mean? Core means जो
दी नेटिव डाटा टाइप्स है, उसकी बेसिक डाटा टाइप्स है। ये तो हम क्लास डाटा टाइप जो है ना, जैसे जैसे हम किसी भी तरह की डाटा टाइप बना सकते हैं। जैसे कार है, तो वी कैन मेक कार एज ए क्लास, वी कैन कीप एक्सेलेरेटर एंड ब्रेक एंड क्लच एज दी ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास जो है बेसिकली आप किसी भी चीज को क्लास बना सकते हैं। जैसे आपने स्कूल को क्लास बना लिया, फिर आपने स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट बना लिया। सो बेसिकली क्लास इज नॉट ए कोर डाटा टाइप। ठीक है, लिस्ट का आपको पता है, दैट इज लिस्ट आर यू नो दे आर इंडेक्स्ड, टपल्स आर इंडेक्स्ड, बट टपल्स आर इम्यूटेबल, and dictionary is ordered data, unordered data type, clear, and it contains pair of this values, and तो ये fixed है basically, but this is class is very very flexible। class को आप चाहे आप स्कूल को क्लास बना सकते हो, ठीक है, कार को क्लास, किसी भी चीज को आप क्लास बना के फिर उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज फॉर दैट। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली the expression this. Now we have one more student here. Let us first join him and then we will start. Yes, Tanishk, beta camera on kar lo. Yes, welcome to the class, and please switch on your cameras. Yes, so this is the final call to Mr. Tanishk. So let us discuss the next question is, this is the expression 8 by 4 by 2 will evaluate to the equivalent, इसकी आउटपुट बतानी है। will be equivalent to, किसके equivalent होगा इसमें से? नीचे 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। पहले सबसे पहले इसमें से देखो कि इसमें से ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इसमें से? I think A. नो, डोंट लुक एट द ऑप्शन फर्स्ट। पहले ये बताओ कि इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले सॉल्व क्या होगा? So the first one, 8 divided by 4. ये जो एक्सप्रेशन है 8 by 4 by 2, इसमें सबसे पहले सॉल्व क्या होगा? एट बाई 4 होगा या 4 by 2 होगा? हाँ जी, 4 by 2. 4 by 2. 4 by 2 क्यों होगा? जब भी दो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम है तो एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस केस में क्या है, the 8 by 4 will be divided first and this one will be the answer. D option will be the answer. So अगर इसको हमें टेस्ट कर, When the priority is not same, then it works from left to right, right? Or right to left. देखो सबसे पहले क्या है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर, विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। देखो मोस्टली जो 95% ऑफ दी ऑपरेटर्स हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं, बट एक हमने एक्सपोनेंट ऑपरेटर किया था, उसकी एसोसिएटिविटी कौन सी है, राइट टू लेफ्ट है, वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व हो। ठीक है, तो इन चीजों को हमने वी हैव टू कीप इन माइंड एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन आल्सो सो दैट वी हैव द क्लैरिटी ऑफ द इशू आल्सो। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ दैट इज सॉल्व द क्वेश्चन प्रैक्टिकली, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे वी विल नॉट फैच द थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। पाइथन को लर्न करना है तो देन यू हैव टू इंप्लीमेंट थिंग्स। हाँ जी,
रुजू ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या आएगी इसकी आउटपुट, क्या आएगी एक्स की? हाँ जी, 15. 15 कैसे आएगी? So first we will divide 4 by 2. फिर आप 4/2 करी जा रहे हो आप। So for what we are asking for question number 27. अब देखो, अब इसकी आउटपुट आ गई आपके सामने। Your screen is not visible. The question या answers are visible. ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा था दैट स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट। नाउ द स्क्रीन इज विजिबल। ओके, नाउ सी हियर, सबसे पहले क्या होगा, 8/4 होगा। 8/4 से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 8/4 से क्या रिजल्ट आएगा? 2। और 2 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 1 एज आंसर। और डी ऑप्शन में क्या किया हुआ? डी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ, दिस हैज बीन पुट इनटू द ब्रैकेट्स and when you will run this one, so you will get the same output. Clear? So if you look at the question, clear? So option D is the correct answer. आप किसी और चीज को ट्राई करके देखो, जैसे ये है, this is the option. हाँ जी, इसका बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? हाँ जी, 4. यस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 डिवाइडेड बाय 2 2, और फिर 8 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 4 एज द आंसर। यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं वहीं से, so that you have the 100% clarity over the issue. चलो एक ये कर लेते हैं। Yes, this one. Again the answer will be 4. नहीं, इस बार 4 नहीं आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा? ठीक है, इस बार फ्रैक्शन में आएगा। देखो 2/4 आपके पास आएगा, 1/2 0.5 आएगा। 0.5 डिवाइडेड बाय 8 इज, तो 0.5 के 8 हिस्से हो जाएंगे, तो ये काफी छोटा नंबर बन जाएगा। यू आर गेटिंग और नॉट? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप इसको बाई पार्ट्स कर लो। आप इतना करो पहले, तो आपके पास 0.5 आंसर आ गया। तो जैसे अब लो आप, यू से y इज इक्वल टू x/8, तो आप यहाँ पे y को प्रिंट करो एंड यू विल गेट नाउ द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो पहले इसकी डिवीजन हुई तो आपके पास आंसर आ गया 0.5, फिर 0.5 को आपने 8 से डिवाइड किया तो ये वाला आंसर आ जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन ऑल सच इश्यूज। So let us move to the next question. Yes, Tanishq, are you there? Yes, sir. हाँ, करो बेटा। 28th क्वेश्चन काफी इजी है, इसको ट्राई करके देखो क्या एबीसीडी में से क्या आएगी आउटपुट। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यस अविशी, आप करोगे ट्राई इसको? Sir, B option. बी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये बी ऑप्शन कैसे आएगा? पहले हम इसको 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 प्लस दिस वन 15.25, और 15.25 को जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 15 बन जाएगा। सो द बेस्ट वे इज कॉपी दिस वन and go to this Jupyter notebook and try to print the value of
x. Clear? So you get 15 as the answer. ठीक है, सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा, पहले ये क्यों होगा, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 4/2 2 and then 2 is added to this one, so you get 15 as the answer. Okay, yes Vishi, next आप करो अटेम्प्ट इसको 29th. Look at the options. ये सिंपल ऐड होगा 7 ABCD में देखो क्या आंसर, 7 7. ठीक है, यस तनिष्क करोगे ट्राई इसको? Sir, 7. Okay, so let us make a try. देखो ये दोनों वैल्यू स्ट्रिंग है, 7 तब होगा अगर दोनों वैल्यू इंटीजर होती हमारे पास. ठीक है, तो इसको क्या करवा रहे हैं हम, x को असाइन कर देते हैं और x को प्रिंट करवा देते हैं. ठीक है, और अगर आप यहां से इंटीजर को खत्म भी कर दो, अगर आप यहां से इंटीजर खत्म कर दो तब इसका आंसर क्या आएगा? Yes. One more student has joined. Welcome to the class, Japit. So straightforward, you have a question. Yes, please switch on your camera first. हाँ, कैमरा ऑन करो बेटा पहले, जपित. यस करो ट्राई आप. कैसे विशी? अगर मैं इंटीजर मूव कर दूंगा तब इसका आंसर क्या आएगा? स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी. हाँ जी, ये स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी. हाँ स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी एंड यू विल गेट द सेम आंसर. जब आप यहाँ पे इंट लगाओगे तो ये स्ट्रिंग नहीं बनेगा, ये न्यूमेरिक बन जाएगा, लेकिन आउटपुट वही रहेगी हमारे पास. यू आर गेटिंग और नॉट? इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में पहले कंकैटिनेट हो रहा है, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है तो कंकैटिनेट हो जाएगा. कंकैटिनेट होने के बाद ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. और इस केस में क्या है कि अगर अगर आप यहाँ पे इंटीजर मूव कर देते हो, सो दिस इज एक्टिंग एज ए स्ट्रिंग. अब अगर दोनों को डिफरेंशिएट करना हो कि इस और इसमें और दूसरे इंटीजर में क्या डिफरेंस है, तो कोई और मैकेनिज्म बता सकते हो आप? हाँ जी, देखो ये जैसे ये दोनों स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं z इज इक्वल टू x प्लस 5. तो बता सकते हो क्या आउटपुट आएगी? यस यस, अनम्यूट करो, अनम्यूट. 39. हाँ जी, 39. ओके, तो ये क्या आ गया, देखो एरर आ गया हमारे पास. क्यों एरर आ गया?
क्योंकि 34 अभी नंबर नहीं है, 34 अभी स्ट्रिंग ही है। तो आप स्ट्रिंग के अंदर 5 ऐड करोगे तो हाउ विल बी एबल टू कैलकुलेट। दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए या तो दोनों इंटीजर हो या एक फ्लोट हो, स्ट्रिंग में कुछ आप ऐड नहीं कर सकते आप। और अगर आप यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इंटीजर लगा दिया, अब इसका आंसर बता सकते हैं क्या आएगा जेड की वैल्यू? So now it will add. Yes, 39 now will now it will add. Very good, very good. Now perfectly all right. Now it will add. Why it will add now? Because now both the values are of integer type. Okay, so to understand the background of the question is equally important. So now we have you see here integer has been converted into float, and this inf has been converted into, so inf these are the two values converted into float one, and then they have been subtracted. So I think we have not encountered this sort of questions, so better that we try this question on the system and then try to check it out. ठीक है, तो इसमें भी टाइप कास्टिंग का काम किया हुआ है, बट we'll try to check it out कि x की वैल्यू क्या आती है। सो नॉट ए नंबर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास फ्लोट स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग को आप फ्लोट में कन्वर्ट करोगे सो यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू ओवर, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट कुछ फ्लोट में होता ही नहीं है, इसके इक्विवेलेंट भी फ्लोट में कुछ नहीं होता। तो दिस इज विल गेट ए नॉट ए नंबर। NaN की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉट ए नंबर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था because you have not seen this sort of question. Now next question is, yes Tanish, are you ready? Next question is quite easy. आप करो अटेम्प्ट इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 31। तो 22 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास। Sir, 7. Very good, 7 is the remainder. Yes Avishi, म्यूट कर लो बेटा इसको। 7.0. 7.0। पहले मेरे को ये बताओ आप लोग कि रिमाइंडर क्या होता है? व्हाट इज द रिमाइंडर? But its remainder will be almost 0.66 something. तो one answer ही होगा। नहीं, एक मिनट रुको। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? Yes, sir. ये है मेरे पास 7, ये है मेरे पास 3, 3 to the 6। अब मेरे को बताओ कि इसमें रिमाइंडर कितना है? 1। गुड। हमारे पास क्वेश्चन था 22 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 दा 21, सो वी गेट हियर 1। अब बताओ इसमें रिमाइंडर कितना है? 1। वेरी गुड। नाउ मूव बैक टू द क्वेश्चन। अब इसमें बताना कि सी आंसर है या डी आंसर है। Sir, D. D. डी। देखो So डी it कैसे, can be डी कैसे आएगा? C. सी आएगा। C देखो भी हो जब सकता है जब क्योंकि हाँ, जब float दोनों में से value है। एक वैल्यू, जब दोनों में से एक वैल्यू फ्लोट हो जाएगी सो यू विल गेट द आंसर इन फ्लोट ओनली। तो इसका बेस्ट वे है दैट इज मूव टू द जुपिटर नोटबुक। सो लेट्स से x is equal to 22, then percentage 3.0, and then print the value of x, we get the remainder, and remainder will be 1.0। अगर यहाँ पे 3.0 की जगह 3 होता
तो देन आपके पास रिमाइंडर 1 आना, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर है। So let us come back to the main question. So try to solve these sort of questions, और कंसेप्ट भी साथ साथ में कंसेप्ट के ऊपर भी फोकस करो। So next is the question number 32. Which of the following expression result in an error? So C, because it's not an integer value. Point लगा, float value. C. Which of the following expression result in error? तो फ्लोट इसको किया, इंटीजर को किया, और इसको किया, और इसको किया। सी, वाई दी सी इज द आंसर? So because bracket में float value है. ब्रैकेट में फ्लोट वैल्यू। So this will go to an error. Okay. और आप बाकियों को, आप अगर हम ट्राई करके देखें, और एक आधी वैल्यू को ट्राई कर लेते हैं, और अगर हम इसको, ये तो पहले ही फ्लोट है, और अगर 12 को फ्लोट में किया, इसको एक्स साइन कर देते हैं, और ये आएगा 12. ओके जी, सो वेरी गुड आंसर बाय अविशी। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये मेरे से पूछा भी था क्वेश्चन बाय मिस्टर पुष्प। ये पुष्प ने ये मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, एंड ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आल्सो। सो ए लिस्ट इज गिवन टू अस। सो सपोज दैट एस, एस क्या है, एस इज ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग गिवन टू है हमारे पास, जिसकी वैल्यू, जिसको हमने नाम दे दिया एस। सो हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एक्सेप्ट वन, विच वन? तो इनमें से सभी एक ही तरह की आउटपुट देंगे, एक जो है वो डिफरेंट आउटपुट देगा। इसमें से एक डिफरेंट आउटपुट देगा, बाकी सभी सेम आउटपुट देंगे। तो बता सकते हो कौन सा है जो डिफरेंट आउटपुट देगा? सबसे पहले तो हम ये इसको ट्राई करते हैं, लाइक दिस वन। पहले क्वेश्चन समझा दो, क्वेश्चन समझ। मैं बता रहा हूँ। एस इज इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या थी, फुटबार, और यस, और इसकी हमने वैल्यू करनी थी चेक। पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्टार्टिंग सबसे पहले तो आर आएगा, बिकॉज ये माइनस है तो ये राइट साइड से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5, तो फिर 5 की इंक्रीमेंट होके ये एफ आ जाएगा हमारे पास, एंड जस्ट प्रिंट दिस वन। तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, सबसे पहले आर, और फिर इसके अंदर आप 5 इंक्रीमेंट कर दो, 1 2 3 4 एंड 5, तो एफ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास पहली वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी को भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इसकी आउटपुट बता सकते हो?
S0 R प्रिंट होगा S0 किसको बोलते हैं? S0 इज दिस वन F the और first S-1 इज R. सो सी हियर, इसमें F पहले आएगा, R बाद में आएगा. अब थर्ड केस चेक कर लो. ठीक है, तो इसमें क्या है? दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दी -1. तो -1 क्या है? ये. फिर इसके बाद फिर से -1 लिखा हुआ है. ठीक है, सो दिस -1 मीन्स, देखो आप इसको छोड़ दो, पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं. पहले इसकी आउटपुट क्या आती है. तो इससे क्या आ रहा है? देखो, ये -1 का मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम दिस वन. फिर इस लिस्ट के अंदर -1 का मतलब है कि फिर से उसके लास्ट वाले एलिमेंट में चले जाए. ठीक है, ये है -1. तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? F. और जो दूसरा है, इसमें लेंथ ऑफ S. लेंथ ऑफ S कितनी है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 है इसकी लेंथ. 6 - 1 5. तो S5 क्या होगा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 इंडेक्स. तो इससे क्या आ जाएगा? यू विल गेट हियर R. तो देखो, इसमें क्या थी हमारे पास? RF आउटपुट आ रही थी, इसमें भी FR आ रही है, इसमें भी FR आ रही है. और एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास, दिस वन. तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या आउटपुट आती है. सो लेट्स चेक दिस वन आल्सो आउट. इससे क्या है आ रही है हमारे पास? FR. इससे कौन सा एलिमेंट होगा हमारे पास? दिस इज -1. -1 इज R. और -5 कौन सा है? ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5. ठीक है जी. तो 5 की इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, 1 2 3 4 एंड 5. तो इसमें क्या है हमारे पास आंसर? इसका आंसर है RF. इससे हमारे पास डिफरेंट आउटपुट आ रही है, बाकी सभी से हमारे पास FR आउटपुट आ रही है. यू नाउ लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में ये पूछा था कि इसमें से सपोज दिस इज द स्ट्रिंग एंड ऑल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एक्सेप्ट वन. तो इसमें से आपने बताना था कि कौन सा एलिमेंट जो है जो डिफरेंट आउटपुट हमें. क्लियर? सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज सॉल्व दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो. ठीक है, और इसको सिस्टम पे रन करो. तो सॉफ्टवेयर है आपके पास अभिषेक? ठीक है, yes sir. तो ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बैंक अपलोड किया हुआ है. सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ दैट वन. और जहां पे भी आपको डाउट आती है, प्लीज आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आती है, प्लीज रेज योर डाउट कि सर मेरे को, या मेरे को आप क्या करते हो, आप मेरे को कम से कम मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो बिफोर द क्लास कि सर ये क्वेश्चन मेरे को क्लियर नहीं. ठीक है, सो होप यू हैव फाउंड द टुडे सेशन फ्रूटफुल. तो पाइथन में क्या है? पाइथन में आपको तभी इंटरेस्टिंग लगेगा दैट इफ यू आर बेसिकली सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स ऑन द सिस्टम. वहां से आपको पूरी तरह क्लैरिटी होगी. ठीक है, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू.